हाँ जी बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द डिमांड फंक्शन। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा कि एज द प्राइस इंक्रीजेस दैट द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ये लॉ ऑफ डिमांड है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम रखते हैं प्राइस को और एक्स एक्सिस के ऊपर हम रखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है और उसकी जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसका स्लोप जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। और जब दो बायर्स के हम ऐड करते हैं डिमांड कर्व्स को तो मार्केट डिमांड कर्व बनता है। अच्छा, मार्केट डिमांड कर्व हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड कम आती है। सो प्राइस और क्वांटिटी जो है वो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, ये जो हमने कर्व बनाया है इसके ऊपर हम देखते हैं इस कर्व एज द प्राइस इंक्रीजेस द कर्व इज उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स रीच करेगा। प्राइस इंक्रीज करेगा और क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी। सो चेंजेस इन प्राइस will always be shown as movements along this downward sloping curve of the demand curve के ऊपर जब price change आएंगे तो उसके अंदर it would be shown as movements along this curve. As price is going to increase, we see that the quantity demanded is going to decrease. So the changes in price is going to be shown as movement along the demand curve. But in case that income changes, now income, we are measuring price on one side on the y-axis and quantity demanded on the x-axis. So therefore, when there is an income change, if we want to see it in this diagram, we see it as a shift. We see it as a shift. और ये पेज 70 के ऊपर हम लास्ट देख रहे थे कि वो शिफ्ट्स कैसे होती हैं। जब इनकम इंक्रीज करती है, डिमांड इंक्रीज हो रही होती है, तो दैट शिफ्ट्स आउटवर्ड्स, द डिमांड कर्व शिफ्ट्स upwards and outwards, and when there is decrease in income, we can see that the shift in the demand curve is downwards. That is a decrease, showing a decrease in demand because of decrease in income. Now, here it is important to remember that for all those goods, all those products in which when the income increases, there is an increase in demand, and when the income decreases, there is a decrease in demand. All these kind of goods are called as normal goods. जैसे कुल्फी की फॉर एग्जाम्पल हम बात जब करते हैं तो कुल्फी जो है वो नॉर्मल गुड है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगी तो लोग ज्यादा कुल्फियां खरीद सकते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी दैट्स अ नॉर्मल गुड। मोस्ट गुड्स आर नॉर्मल गुड्स। अच्छा, नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन जो है ये पेज 70 के ऊपर लिखी हुई है। यू नीड टू अंडरलाइन दिस प्लीज। नॉर्मल गुड, अ गुड फॉर विच अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, an increase in income leads to an increase in demand. ठीक है? So most goods are normal goods because when the buyer's income increases, there is going to be an increase in demand, and in terms of the demand curve, we can see that the demand curve is going to shift outwards. Okay, and similarly, if the good is a normal good, then the demand curve is going to shift downwards when there is a decrease in demand and the income is decreasing. For all goods for which this is true, they are called the normal goods. But there are other goods also. For example, there are some goods which are called as inferior goods. अब inferior goods वो होते हैं, और यहाँ पे डेफिनेशन भी है, प्लीज यू अंडरलाइन इट, पेज 70. inferior good, a good for which other things being equal, an increase in income leads to a decrease in demand. अब मसलन लोग जो है वो जब उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो चाहेंगे कि वो अपनी गाड़ी के ऊपर ट्रेवल करें. सो दैट इज व्हाई बस राइड्स या लोकल बस राइड्स कैन बी कंसिडर्ड एज an inferior good, because when people's income is going to increase, their demand for this particular good, which is bus rides, it is going to decrease. So other than that, so they can be a normal good and they can be an inferior good. फिर
एक गुड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एज सब्स्टिट्यूट्स, ओके, सब्स्टिट्यूट्स, उसको भी अंडरलाइन करें। टू गुड्स फॉर विच एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर, ओके, these are called as substitutes. जैसे for example, for all other goods, you know, इनका आपस में रिलेशनशिप होता है एक गुड की प्राइस का और दूसरे गुड की प्राइसेस का, जबकि गुड्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट्स हों। मसलन सब्स्टिट्यूट्स की अच्छी एग्जांपल है नान और रोटी। भाई नान और रोटी तकरीबन एक ही जैसी चीज है ना। जब नान, अगर रोटी की प्राइस इंक्रीज करेगी तो नान की डिमांड जो है वो एट द सेम टाइम इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, क्योंकि एक चीज की जब प्राइस इंक्रीज कर रही है, जैसे रोटी की प्राइस कर रही है, तो जो नान है वो उसका सब्स्टिट्यूट है। जब रोटी की प्राइस इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो नान की डिमांड इंक्रीज करेगी, क्योंकि नान की अगर प्राइस उतनी रहती है, रोटी की प्राइस बढ़ जाती है, और ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो लोग ज्यादा नान खाना शुरू कर देंगे, तो इसलिए उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स। उसके बाद एक और किस्म के गुड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ये अंडरलाइन करें। Two goods for which an increase in the price of one leads to a decrease in the demand of the other. इसकी एग्जाम्पल है ब्रेड और बटर। यूजुअली ब्रेड और बटर जो है वो इकट्ठा खाया जाता है। बटर जो है यूजुअली जो है वो मक्खन और टोस्ट ही खाए जाते हैं ना। तो अगर जो है वो प्राइस ब्रेड की बढ़ेगी तो ब्रेड की तो डिमांड कम होगी होगी, बटर की भी डिमांड कम होगी। इनको हम कहेंगे as complements, ठीक है। So goods can be either normal goods, inferior goods, substitutes or complements. Now other than these related groups, goods, इनकी prices आपस में difference होता है जो कि shifts cause कर सकते हैं। Another thing which can cause shifts is tastes. So tastes usually remain the same, and economists don't study tastes a lot. ये तो मार्केटिंग का एरिया है जो स्टडी करते हैं what consumers prefer and consumer preferences etc. इकोनॉमिस्ट यूजुअली इनको इक्वल समझते हैं कि टेस्ट चेंज नहीं हो रहे, लेकिन हो भी सकते हैं ओवर टाइम, पर्टिकुलरली इन द लॉन्ग रन। अगर टेस्ट चेंज हो जाए तो उससे भी इंक्रीज कर सकती है डिमांड, डिक्रीज कर सकती है डिमांड। जैसे ओवर टाइम मिठाइयाँ लोग कम पसंद करते हैं और केक्स ज्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो आई मीन ये शिफ्ट हो जाती है कि मिठाइयों की डिमांड ओवर टाइम चेंज हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग शहरों में रहने लगते हैं, उनको मिठाई जो है वो पेंडू जो है वो प्रोडक्ट लगती है, तो दे वांट टू शिफ्ट टू केक्स एटसेट्रा। सो ये जो चेंज इन टेस्ट है, इससे भी डिमांड चेंज हो सकती है कि एक चीज की डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए, क्योंकि प्रेफरेंसेस जो हैं वो ओवर टाइम चेंज करती हैं। इनको कहते हैं टेस्ट। सो दैट कैन ऑल्सो कॉज shifts in the demand curve. फिर expectations are very important. देखें, एक चीज है एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब कि आगे जाके इनकम के बारे में भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। उन्होंने कहा है योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर मे अफेक्ट योर डिमांड for a good or a service today. If you can expect to earn a higher income next month, you may choose to save less now. Okay, so expectations, particularly expectations about income, can change, can shift the demand curves as well. Okay, number of buyers. So if there are more buyers for the same quantity, for the same product, then the market demand is going to increase. ठीक है, so if number of buyers increases, that also leads to shifts in the demand curve. राइट, इसका एक समरी जो है वो दिया हुआ है पेज 71 पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ एक डिजाइन करके दूंगी, मल्टीपल चॉइस क्विज। वहां पे ये छोटे छोटे जो है पॉइंट्स, ये उस दे विल हेल्प यू टू आंसर, you know, to correct, choose the right choices in that multiple choice when we are doing the quiz. So ये short questions के लिए बड़े जरूरी और important है। So table 1 प्लीज ये देखें पेज 71 पे, variables that influence the buyers। अभी तक जितनी डिस्कशन की वो उसको उन्होंने समराइज किया हुआ है इस टेबल में। इसमें देखें वेरिएबल क्या लिखा है, प्राइस ऑफ अ गुड इट सेल्फ। अच्छा, प्राइस, अगर प्राइस चेंजेस तो आगे देखें रिप्रेजेंट्स अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यही बताया ना आपको। इनकम
price of related good, taste, expectation, and number of buyers. These are all which cause the shifts in the demand curve. Acha. Now, next, I'm also going to discuss a little bit about this assignment number 4 which I have given you. ठीक है, assignment number 4. ये assignment जो है ये मैं साथ इसको attach कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने ये इसको solve किया हुआ है. So assignment number 4 asks you to make a demand schedule and a demand curve based on the number of kulfi ice creams which Atif buys each month at different prices. ठीक है जी. तो अब हम वही एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ कैथरीन एंड निकोलस, लेट अस टॉक अबाउट पीपल हु आर मोर नोन टू अस लाइक आतिफ एंड आसिया. अब वो नाराज ना हो जाए. आतिफ और आसिया, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको कुल्फियां बहुत अच्छी लगती हैं. ठीक है, और गर्मियां आने वाली हैं और होपफुली हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और हम मजे से कुल्फियां बनाएंगे और खाएंगे. तो आतिफ को जो है वो कुल्फियां बड़ी पसंद है और आतिफ जो है वो कुल्फियां जो है वो डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे डिफरेंट कुल्फियां खरीदने के लिए तैयार है. अब इसके ऊपर जो है वो मैंने इसको आई मेड इट pretty similar to the kind of assignment you've done before, लेकिन मैंने ये अज्यूम किया हुआ है कि प्राइस ऑफ अगर ये आप देखें यहाँ पे भी मैंने इसको आपके मटेरियल के साथ भी अटैच किया. इसको गौर से देखें कि जब प्राइस जो है वो सिफर से मतलब इट्स इन रुपीज, प्राइस इन रुपीज होने चाहिए. वैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप लिख लें प्राइस इन रुपीज. ओके, सो रुपीज अगर सिफर है तो आतिफ भी जो है वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 12 होगी. इसी तरह जैसे 50 और 100 पे वो 8 कुल्फियां खरीदेगा, 300 पे वो सिफर कुल्फियां खरीदेगा. ये जो है ना उसका डिमांड कर्व. इसका जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे आतिफ का क्वांटिटी डिमांडेड है. और अगर आप इसकी जरा थोड़ा सा ऊपर देखो ना तो मैंने इसका आपको फॉर्मूला भी लिख के दिया हुआ है. ठीक है, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि मैं अज्यूम कर रही हूं कि आतिफ का जो डिमांड कर्व है वो एक लीनियर फंक्शन है और इसीलिए उसका आप देख लें कि उसके अंदर कोई भी स्क्वायर वैल्यू मैंने नहीं ली हुई. ठीक है, सो इट्स अ लीनियर फंक्शन. इस फॉर्मूला से भी इसको हम कहते हैं इनवर्स डिमांड. ठीक है, इनवर्स डिमांड कहते हैं क्योंकि प्राइस को जब हम प्राइस को जब हम वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो हमेशा उसका इनवर्स डिमांड कर्व ही हम अज्यूम कर रहे होते. तो यहाँ आप देखें इनवर्स डिमांड कर्व मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है और उस हिसाब से इस फार्मूला में भी अगर आप ये डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स लगाओगे तो यही आपको प्राइसेस मिलेंगी. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज प्राइस, फिर हमने क्वांटिटी डिमांडेड और उसके ऊपर यहाँ पे ऊपर करके मैंने उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है या आप इसको फंक्शन कह सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखी हुई है. अच्छा, फिर साथ ही ना आपने यहाँ ये जो है ना ग्राफ ये बनाने हैं. मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है, ये आप लोग जब अपनी असाइनमेंट बनाएंगे बच्चों तो ये जो है ना यू नीड टू डू दिस ऑन अ ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर खरीद लें और इसको ग्राफ के ऊपर स्केच करके मुझे दिखाएं. मैंने पॉइंट्स आपको लिख के दिए हुए हैं, इसको आप ग्राफ पे स्केच करें. मैंने तो हाथ से बनाया हुआ है तो तकरीबन इसी किस्म का कर्व आपका आएगा. शेप आपकी ऐसी आएगी लेकिन ज्यादा एक्यूरेटली बनाएं यूजिंग अ ग्राफ पेपर पे बनाएं या आपको मेरे ख्याल में मैथमेटिक्स की क्लास में कराया गया होगा. अच्छा, सो दैट आंसर्स क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 इन असाइनमेंट 4. द सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर हम आसिया का लेते हैं तो उसके अंदर उसका भी जो है थोड़ा सा डिफरेंट मैंने आपको दिखाया हुआ है कि उसका क्वांटिटी डिमांडेड डिफरेंट होगी. पॉइंट वही है, देखिए इसके भी जो स्लोप है वो नेगेटिव है. ऊपर मैंने इसकी भी असाइनमेंट इसका भी फंक्शन लिखा हुआ है, लीनियर फंक्शन है, माइनस में चीज है तो इसका मतलब है डेफिनेटली इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और वो आप यहाँ पे जो कर्व है इन्हीं पॉइंट्स को आप ले लें और उसका आसिया का भी जो रिप्रेजेंटेशन दिखाएं दैट आल्सो नीड्स टू बी डन ऑन अ ग्राफ पेपर. अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है कि अगर ये दोनों जो है ये मार्केट के अंदर बायर्स हैं तो इनका मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा, इनको ऐड किया है और ये लिख दिया है और इससे भी मैंने एक जो है वो उसको स्केच किया हुआ है, मार्केट डिमांड को भी स्केच किया. अगर आप देखो तो इनका स्लोप्स थोड़े थोड़े डिफरेंट है, वो आपको यहां से भी नजर आ रहा है. जो इनकी इक्वेशंस है उनमें से भी नजर आ रहा है कि जो माइनस के साथ कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए आपको इनके स्लोप्स की शेप थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी. बट दे आर ऑल डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस, राइट. तो ये आपने ये तीनों कर्व्स जो है ये आपने बनाने हैं ऑन अ
आप ये बनाएंगे ऑन अ ग्राफ पेपर ले ले और तीनों को अलग अलग बनाए. होपफुली मॉर्निंग में तो दुकानें खुली होती है, तो ग्राफ पेपर ले आओ, शाबाश, और जाके इसको ग्राफ पेपर पे बनाना और अपने रजिस्टर्स के अंदर इसको साथ साथ स्टिक कर देना और देन उस तरह असाइनमेंट बना के देनी. अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि जो मैंने शिफ्ट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्ट्स, और ये मैंने यहां पे बना के दिया है शिफ्ट्स. अब पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखो तो उसमें उसकी पहले इंक्रीज होती है, उसकी शिफ्ट अपवर्ड इसलिए होता है, आतिफ की जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट अपवर्ड इसलिए होता है बिकॉज उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है और दूसरी दफा उसकी एक्सपेक्टेशंस अबाउट इनकम इंक्रीज हो रही है. ये वाला नेसेसरली आपको ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना, ठीक है. ये एक जनरल मैं देखना चाहती हूँ कि आपको शिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना. इसको नेसेसरली ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, लेकिन यू डोंट नेसेसरली हैव टू मेक इट ऑन ग्राफ पेपर. सिमिलरली पॉइंट नंबर 5 जहां पे आसिया का है, उसकी भी पहले इनकम डिक्रीज होती है. जॉब कर रही है, जॉब छोड़ देती है तो इनकम डिक्रीज होती है, तो वो आप देखेंगे वो नीचे की तरफ शिफ्ट है, और जिसको मैंने पॉइंट नंबर 1 दिखाया हुआ है यहाँ पे. और उसके बाद फिर उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कोई अपना बिजनेस शुरू कर देगी, इनकम इंक्रीज होगी, तो वो शिफ्ट अपवर्ड्स है. सो ये वाला भी जो ग्राफ है पार्ट नंबर 5 का, यू डोंट नेसेसरली हैव टू मेक इट ऑन अ ग्राफ पेपर, आप अलग से बना सकते हैं. और पॉइंट नंबर फिर जो है लास्ट इसका जो 6th जो पार्ट है उसके अंदर मैंने कहा है कि ये बताएं कि अगर इफ दे आर मोर बायर्स, तो आपने पेज 71 के ऊपर भी हमने जो देखा है कि इफ नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज देयर इज आल्सो शिफ्ट इन डिमांड कर्व. तो यहां पे मैंने शिफ्ट इन डिमांड कर्व आपको स्केच किया हुआ है. ये भी आपने नॉट नेसेसरली ऑन ग्राफ पेपर लेकिन अपनी कॉपीज में बनाना है, ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट how markets work and about the different factors related to demand. I hope कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा. इसके लिए आपने जो मटेरियल्स हैं वो मैं आपको साथ सेंड कर रही हूँ, और आपने अपनी बुक्स रेलेवेंट पेजेस के ऊपर खोलनी है, उनको उसमें से जो जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ उस मटेरियल को अंडरलाइन करें, कोशिश करें कि पहले नोट्स बनाएं, सारे पॉइंट्स जो हैं वो जो बुक वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो खुद से भी अपने नोट्स में बनाएं, और असाइनमेंट भी आपने करनी है. ये असाइनमेंट 4 के साथ रिलेटेड है, इसकी मैं आपको डेडलाइन बताऊंगी, ठीक है. सो गुड लक एंड आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए मेरे लेक्चर से. अगर आपको अभी भी मसाइल हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप अपने सीआरस के साथ कोऑर्डिनेट करें कि जी हमें बात समझ में नहीं आ रही, मैम से कहें कि हमें जूम पे ले या किसी और तरीके से हमें समझाएं, तो वी कैन वर्क इट आउट. बट आई होप दैट विल नॉट हैपन, और आप कोशिश करें कि आप इन लेक्चर्स और सारे बाकी जो मटेरियल्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ उनसे मिलके आप try to make sense of it. But if you are still finding problem, I'm always available. Just contact with your CRs and they will contact me and I will see कि मैं इसको और किस तरह आपको explain कर सकती हूँ, ठीक है. So good luck and इंशाल्लाह इस assignment से related अब मैं आपको एक quiz भी दूंगी. So wait for that. Good luck. Goodbye.